عریشہ اور تیمور کا نکاح تھا جب رخصتی 1 سال بعد ہونا قرار پائی تھی اور شاہزیب کی باقاعدہ شادی تھی۔ تھرسڈے کو مایوں بیٹھنا تھا دونوں کو، اور مایوں کا اور بارات کا فنکشن تیمور نے ڈیسائیڈ کیا تھا، جبکہ ولیمہ شاہزیب نے کرنا تھا۔ حوریہ کو تیمور کے گھر آ کر اپنا اپنا لگا۔ وہاں کے رہنے والوں نے حوریہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ علیزہ بھی اپنے بچوں سمیت آ گئی تھی۔ وہاں حوریہ کا دل لگ گیا تھا۔ وہاں کے لوگوں کی آپس میں محبت اور چھیڑ چھاڑ سے حوریہ خوب لطف اندوز ہوتی تھی۔ آج بھی سارے گپ شپ کرنے لگے۔ حوریہ اور تیمور کی خوب ٹانگ کھینچنے کا پلان تھا، جس میں علیزہ آگے آگے تھی۔ تیمور بھائی، آپ کتنے چھپے رستم نکلے، میری دوست پر نظر رکھے ہوئے تھے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ او لڑکی، صحیح کر لو، نظر نہیں رکھی بلکہ دل میں رکھا، جس کا عملی ثبوت نکاح ہوگا۔ اوہو، تیمور کی بات پر سب خوب شاؤٹنگ کر رہے تھے۔ شاہزیب اور بی اماں دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ بی اماں کی عمر اب ایسی تھی کہ وہ بھاگ بھاگ کر کام نہیں کرتی تھی۔ جبھی انہوں نے اپنی بیٹی کو بلا لیا تھا، شادی کی تیاری بھی تو کرنی تھی۔ اور پھر جاتے جاتے حوریہ شاہ سے کہہ کر گئی کہ شاہ، میں شاہ ولا میں آؤں گی رخصت ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر میں۔ شاہزیب بھی یہی چاہتا تھا۔ یوں آج یہ لوگ اپنا مختصر سا سامان باندھ رہے تھے۔ مایوں کا دن بھی آ گیا۔ اس کی ساری تیاری علیزہ اور تیمور نے مل کر کی تھی، جبکہ بارات اور ولیمے کا جوڑا شاہزیب نے خود لیا تھا۔ پورے گھر کو گیندے کے پھولوں کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ ارینجمنٹ سے پتہ لگ رہا تھا کہ مایوں ہے۔ حوریہ کو دوپٹے کی چھاؤں میں اسٹیج پر لایا گیا۔ حوریہ نے پیلا جوڑا پہنا تھا اور دوپٹے کے آگے کو گھونگھٹ گرایا ہوا تھا، جس سے حوریہ کا چہرہ چھپ گیا تھا۔ شاہزیب نے سفید کرتا پاجامہ پہنا ہوا تھا، جس میں اس کی خوبصورتی اور بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ حوریہ کو شاہزیب کے برابر بٹھایا گیا اور رسمیں شروع ہو گئی۔ حوریہ کی کپکپاہٹ شاہزیب کو واضح محسوس ہو رہی تھی۔ حوریہ سمٹی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہزیب کی نظر حوریہ کے ہاتھوں پر گئی تھی۔ نازک کلائیوں میں گجرے اس کے ہاتھوں میں خوب سجے ہوئے تھے۔ کیا آج ہی سارا دیدار کرے گا؟ تیمور کی آواز پر سب کی ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ شاہزیب نے گھورنے پر ہی اکتفا کیا۔ یوں یہ رات بھی گزر گئی۔ جمعے کا دن تھا اور تیمور کا نکاح جمعے کی نماز کے بعد رکھا گیا تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ حوریہ نے تو کہا تھا کہ وہ بھی نکاح میں جائے گی، لیکن اسے یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ مایوں کی دلہن گھر میں ہی رہتی ہے، جبکہ شاہزیب تیمور کے ساتھ ساتھ تھا۔ نکاح کی تقریب گھر میں سادگی سے ہی رکھی گئی تھی۔ نکاح کے وقت عریشہ کو پتہ چلا کہ اس کا نکاح تیمور سے ہوا ہے۔ ابھی وہ بے یقین ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ بجا اور اندر آنے والے شخص کو دیکھ کر عریشہ کھڑی ہو گئی۔ تیمور کے قدم عریشہ کی جانب تھے اور وہ حیرت سے تیمور کو دیکھے جا رہی تھی، جو بلیک شیروانی میں کافی خوبرو لگ رہا تھا۔ تیمور اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر تیمور نے اسے بولنے سے روکا۔ کچھ تو خیال کرو، ابھی تو نکاح ہوا ہے۔ عریشہ نے شرم کے مارے نظریں جھکا لی اور وہ اس کے سونہنے سے مکھڑے کو تکے جا رہا تھا۔ جب کوئی جواب نہیں آیا تو عریشہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اتنے میں دروازے کی دستک نے تیمور کی محویت کو توڑا تھا۔ ٹائم ختم ہو گیا دلہا بھائی، رامین کمرے سے باہر ہی آواز لگا رہی تھی۔ تیمور نے عریشہ کے ماتھے پر اپنی محبت کی نشانی ثبت کی اور کمرے سے نکلتا چلا گیا، اور عریشہ اس کے لمس میں کھو گئی تھی۔ آج چونکہ تیمور کے نکاح کے بعد شاہزیب کا بھی نکاح تھا، تو سو بارات کے آتے ہی نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ یوں بھی شاہزیب چاہتا تھا کہ نکاح دوبارہ حوریہ کی بھرپور رضامندی سے ہو۔ حوریہ کو اپنے والدین اتنے یاد آ رہے تھے کہ اس کے آنسو خشک ہی نہیں ہو رہے تھے۔ یہ بات بھی شاہزیب کو تیمور نے بتائی تھی۔ بہرحال نکاح کے بعد حوریہ کو اسٹیج پر لایا گیا۔
शाहजेब तो इसके हुस्न को देखता ही रह गया। नूरानी चेहरे पर महारत से किए गए मेकअप, रेड और गोल्डन कलर के शरारे में वो सच में जन्नत की हूर लग रही थी। तैमूर की शोखी और शरारत अपने अरूज पर थी। शाहजेब ने गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। आज वो किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। दोनों की जोड़ी बहुत जच रही थी। अरीशा भी बारात में शरीक थी। यूं भी निकाह तो हो ही गया था। रुखसती के मराहिल तय करने के बाद अरीशा ने शाहविला में शाहजेब के रूम में हुरिया को लेकर गई। अरीशा और तैमूर दोनों बारात के साथ आए थे। शाहजेब कमरे में दाखिल हुआ तो गुलाब के फूलों की भीनी भीनी खुशबू ने इसका इस्तकबाल किया। वो हुरिया के करीब बेड पर बैठ गया। हुरिया घबराहट में अपनी उंगलियों को मरोड़ रही थी। तोड़ोगी क्या उंगलियां? क्यों जुल्म कर रही हो इन पर? शाहजेब ने इसका हाथ थामकर अपने लबों से लगाया। शाहजेब की हरकत पर हुरिया करंट खाकर हाथ खींचा, लेकिन शाहजेब की गिरफ्त मजबूत हो गई थी। हनी, शाहजेब की आवाज की गंभीरता ने हुरिया के रहे सहे असाब भी कमजोर कर दिए थे। मेरी तरफ नहीं देखोगी? हुरिया ने नफी में सर हिलाया। क्यों? आपने मुझे डांटा था। ओ हुरिया, तुम इतनी पुरानी बात दिल में रखकर बैठी हो। हाँ, तो आपको सबके सामने मेरी हिमायत करनी चाहिए थी। अच्छा लो, मैं अब कान पकड़ लेता हूँ। मेरे नहीं, अपने पकड़े। शाहजेब ने हुरिया के कान पकड़ लिए थे, जिस पर हुरिया ने घूर कर कहा, शुक्र है तुमने मुझे देखा तो सही। शाह, आपको पता है ना, मैं आपसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती हूँ। जाने शाह, मैं भी अपनी हनी को अब नहीं डांटूंगा। शाहजेब ने साइड टेबल के ड्रॉअर में एक मखमली केस निकाला और खोलकर इसमें से हीरो का हार उसकी तरफ करके इजाजत तलब नजरों से हुरिया को देखा, जिसने शर्मा कर अपना सर झुका लिया था। शाहजेब ने इसकी अदा पर निहाल होते हुए इसकी गर्दन में पहना दिया था और पीछे होकर खुद उसे अपने बाजुओं के हल्के में भर लिया था। रात धीरे धीरे सुनहरे ख्वाबों की ताबीर लिए ढल रही थी। दूसरे दिन वलीमा था और वलीमे में हुरिया ने सिल्वर कलर की मैक्सी पहनी हुई थी। ये जोड़ा भी शाहजेब की पसंद का था, जबकि अरीशा ने नेवी ब्लू साड़ी पहनी थी। इसके नाजुक सिरापे पर जच भी बहुत रही थी और बालों को खुला छोड़ रखा था। तैमूर ब्लैक पेंट कोट में खूबरू लग रहा था। क्या ख्याल है, आज ही रुखसती ना करवा लूं तुम्हारी? तैमूर ने अरीशा के कान में बोला था। अरीशा का चेहरा सुर्ख हो गया था। जल्दी से घबरा कर इधर उधर देखा। ओ गॉड, अरीशा इतना क्यों घबराती हो मुझसे? वो कोई देख लेगा, प्लीज आप जाए। देखता है तो देखने दो, मैं अपनी बीवी को देख रहा हूँ और मुझे तुमसे बात करनी है। कल शाम में रेडी रहना, हम आउटिंग पर चलेंगे। तैमूर ये कहकर स्टेज की जानिब चला गया और अरीशा जो इसको इनकार करने लगी थी, उसे मौका ही ना मिला। हुरिया सोफे पर बैठी हुई थी। वो अपनी सोचों में इतनी गुम थी कि शाहजेब के अंदर आने की आहट भी महसूस न कर सकी। वलीमे के बाद सब शाहविला में मौजूद थे, जिसमें अरीशा और तैमूर आगे आगे थे। हुरिया थोड़ी देर वहां बैठकर चेंज करने के गर्ज से रूम में चली आई थी। इसका दिल अपने माँ बाप को याद कर रहा था। शाहजेब इसके बराबर में आकर बैठा। हनी, हुरिया इसकी आवाज पर चौंकी और जल्दी से आंखों के गोशों को साफ किया। वो शाहजेब को बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी। शाहजेब ने इसके कंधों को पकड़कर इसका रुख अपनी जानिब किया। क्या हुआ हनी, क्यों रो रही हो? नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं चेंज कर लूं? हुरिया ने खड़े होना चाहा लेकिन नाकाम रही। शाहजेब ने इसका हाथ पकड़कर बिठा लिया था। क्या तुम मुझे अब इस काबिल नहीं समझती कि मैं तुमसे या तुम मुझसे अपने दुख शेयर कर सके? वो शाहजेब ही क्या जो हुरिया के चेहरे को ना पढ़ सके। बचपन से लेकर अब तक वो इसकी आदतों से वाकिफ था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। हुरिया ने इस पर वाज़िया करना जरूरी समझा। अच्छा फिर कैसी बात है?
शाहजेब ने हुरिया के चेहरे को अपनी नज़रों के हिसार में रखते हुए पूछा। मुझे मम्मा याद आ रही है शाह। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं से आकर मुझे गले लगाए। शाह, मेरा दिल चाह रहा है मैं मम्मा के पास चली जाऊं। हुरिया की हिचकी बन गई थी। याद तो इसे भी आ रही थी, लेकिन वो मर्द था, मजबूत था। हनी, आनी खुश होगी। मैंने उनकी सालों पहले की ख्वाहिश को अमली तौर पर निभाया है। तुम रो रो कर खुद भी हलकान हो रही हो और उन्हें भी तकलीफ दे रही हो। शाह, मैं क्या करूं? मैं रोना नहीं चाहती, लेकिन जब मुझे उनकी याद आती है मेरे आंसू बेकाबू हो जाते। आंसुओं से भरी बड़ी बड़ी आंखें इसके हुस्न को खीरा कर रही थी। शाहजेब ने उसके रुखसारों पर बहते मोतियों को अपनी उंगली के पुरों से चुन लिया था। शाह, उठ जाए, कितनी देर से सो रहे हैं? हुरिया के हिलाने पर शाहजेब कसमसाया और करवट लेकर दोबारा सो गया। अब तो हुरिया पूरी तरह तप गई थी। काफी देर से कोशिश कर रही थी शाहजेब को उठाने की, लेकिन वो तो गधे, घोड़े, हाथी सब बेचकर सो रहा था। अब के हुरिया ने इसके दोनों कांधों को जोर से झंझोड़ा और इसके कान के पास आकर जोर से चीखी, शाह! अल्लाह खैर, क्या आफत आ गई? शाहजेब हड़बड़ाकर उठ बैठा। हुरिया का चेहरा देखा जो लाल हो रहा था। क्या मसला है, सुने दो ना, शाहजेब ने झंझलाई हुई आवाज में कहा। नींद टूटने की वजह से आंखों के डोरे लाल हो गए थे। मुझे कब से भूख लग रही है और आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, हुरिया ने गुस्से से कहा। तो मुझे खाओगी क्या? जाकर कह दो भी अम्मा से। शाहजेब का लहजा चिड़चिड़ाहट लिए हुए था। सोने दो। शाहजेब इससे पहले कंबल अपने ऊपर ओढ़ता हुरिया ने कंबल को कोने से पकड़कर खींच लिया और खतरनाक तेवरों से घूरने लगी। अब के शाहजेब संजीदा अंदाज में हुरिया के जाने बढ़ा इससे पहले कि वो इसे पकड़ता। हुरिया इसके तेवर देखकर कमरे से रफू चक्कर हो गई और शाहजेब दरवाजे को गुस्से से तकता रह गया। थोड़ी देर बाद वो नाश्ते की ट्रे लेकर रूम में आ गई तो वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आने लगी। चलो शुक्र, उठ तो गए। हुरिया ने नाश्ते की ट्रे साइड टेबल पर रखी और खिड़की से पर्दे हटाने लगी। दरवाजे की आहट पर मुड़कर देखा तो निखरा निखरा सा शाहजेब गले में टावल डाले, माथे पर बिखरे बाल मर्दाना वजाहत लिए हुरिया की तरफ आया। हुरिया ने घबरा कर रुख मोड़ लिया। शाहजेब कदम कदम चलता इसके करीब तर होता जा रहा था। हुरिया पीछे की जानिब बढ़ नहीं सकी और खिड़की से लग गई। शाहजेब इसके ऐन सामने आकर दोनों हाथों को दाएं बाएं रखकर इसके जाने के तमाम रास्ते रोक चुका था। हुरिया इसकी कसरती बाजुओं में पूरी तरह छुप गई थी। शाहजेब इसको वालेहाना नजरों से देख रहा था। शाह, वो नाश्ता ठंड। हुरिया से इसकी कुर्बत में बोला ही नहीं जा रहा था। शाहजेब की नजरों की तपिश से इसका चेहरा लाल हो गया था। शाहजेब ने उंगली इसकी थोड़ी पर रखी और इसके चेहरे को ऊंचा किया। क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई? बोलो अब, शाहजेब ने शरारत से कहा। हुरिया ने उसे पीछे हटाना चाहा, लेकिन वो नन्ही सी जान उसे भला क्या ही हटा सकती थी। शाहजेब को इसे तंग करने में मजा आ रहा था। शाह, वो देखे भी अम्मा। हुरिया ने बहाने से उसे हटाना चाहा, लेकिन वो भी अपने नाम का एक था। अब नहीं आऊंगा तुम्हारी बातों में। शाह, हट जाए, मुझे भूख लग रही है और आप तंग किए जा रहे। हुरिया ने मुंह बनाकर कहा। इसे तंग नहीं जाने मन रोमांस कहते हैं। शाहजेब की बात पर हुरिया का मुंह खुल गया। शाह, आप पहले तो ऐसे नहीं थे, हुरिया ने इसकी बेबाकी पर हैरान होते हुए कहा। पहले तो मेरे इतने करीब नहीं थी, इसलिए। अब वो जवाब ही देने लगी थी कि मोबाइल की बेल पर शाहजेब पीछे हटा और हुरिया एक लम्हा भी जाया किए बगैर इसके हिसार से निकली थी और नाश्ते की ट्रे उठाकर सोफे पर बैठ गई। शाहजेब ने इसके अंदाज पर मुस्कुराना बेहतर समझा। अभी आपको तैमूर भाई लेने आए हैं, जल्दी आ जाए। हाँ, आ रही हूँ,
तुम बिठाओ इन्हें, वो तो काफी देर से बाबा से बातें कर रहे हैं। ओ अच्छा यार आमीन, मुझे डर लग रहा है जाते हुए। क्यों भला इसमें डरने की क्या बात है? आप अपने शौहर के साथ जा रही है, किसी गैर के साथ नहीं। चिल करे यार। ओहो, एक तो तुम हर बात मजाक में लेती हो। अच्छा ये बताओ, ड्रेस सही लग रहा है? कसम से आप इतनी अच्छी लग रही हैं, कहीं तैमूर भाई आज ही रुखसती न करवा ले। रामीन ने शरारत से आंख मारते हुए कहा। चुप बदतमीज। अरीशा ने झींकते हुए कमर पर एक हाथ रसीद किया। उफ, आप भी, आपका हाथ है या लोहा? अभी बताती हूँ तैमूर भाई को। रामीन ने धमकी आमेज लहजे में कहा। तुम्हें मैंने अरीशा को बुलाने भेजा था और खुद गप्पे लगाने बैठ गई। राइमा बेगम ने रामीन और अरीशा दोनों को टोका। अम्मी, वो अरीशा ने घबराकर माँ को देखा कि कहीं वो ये ना समझ ले कि इसने जाने का कहा है तैमूर से। अरे अरीशा जल्दी करो, बच्चा कब से इंतजार कर रहा है। मुझसे कल ही फोन पर जाने की इजाजत ले ली थी। बड़ा ही प्यारा बच्चा है। तुम चलो जल्दी नीचे आओ। मेरे साथ जाने का दिल नहीं चाह रहा था क्या? तैमूर ने अरीशा को गहरी नजरों से देखते हुए कहा। वो पहले ही इसकी नजरों से घबराई हुई थी। नहीं, ये किसने कहा आपसे? अरीशा को लगा रामीन ने उसे बता दिया हो। लग तो ऐसे ही रहा है, आने में इतनी देर कर दी तुमने। वो मैं तैयार हो रही थी। अच्छा बात है, तैमूर ने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा, क्योंकि मेकअप के नाम पर काजल और लिप ग्लॉस ही लगा हुआ था। अच्छा छोड़ो, ये बताओ क्या खाओगी? कुछ भी मंगवा ले। तैमूर ने वेटर को इशारे से बुलाकर ऑर्डर किया। शाह बात सुने। हुरिया ने रिमोट से टीवी की आवाज को कम किया। शाहजेब ने हुरिया की जानिब देखा। आप बिजी हैं क्या? हुरिया ने इसके सामने रखे लैपटॉप को देखते हुए पूछा। नहीं, मैं तो गेंद बल्ला खेल रहा हूँ। शाहजेब ने हुरिया को चिढ़ाया। ओके, खेलते रहे, हुरिया कहकर उठकर जाने लगी। शाहजेब ने इसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब बिठाया। बोलो क्या कह रही थी? शाहजेब ने इसके चेहरे पर आई लट को कान के पीछे किया। वो मैं कह रही थी आइसक्रीम खाने चले? हुरिया ने डरते डरते पूछा कि कहीं वो डांट ही ना दे। कल चलेंगे हनी, आज बहुत काम है। ऐसा करो घर में ही मंगवा लो। नहीं रहने दे, आप काम कर ले। हुरिया कहकर कमरे में आ गई। हर वक्त काम ही करते रहते हैं, खड़ूस नहीं तो। हुरिया बेड पर बैठकर मुंह फुलाए दिल की भड़ास निकाल रही थी। शाहजेब ने इसके बुझे चेहरे को देखा तो खुद भी उठकर रूम में आ गया। हनी। हुरिया ने शाहजेब की आवाज को नजरअंदाज किया और मोबाइल उठा लिया। ये भी नाराजगी का एक इजहार होता है। शाहजेब इसके गुस्से से फूले हुए मुंह को देखा और मुस्कुराकर इसके पास आया और इसका हाथ पकड़कर उठाया। हुरिया ने सवालिया नजरों से शाहजेब को देखा। चलो रेडी हो जाओ, चलते। शाहजेब के कहने पर हुरिया खुशी से बोली, क्या सच में अभी तैयार हो जाऊं, चलेंगे? उसने कहा, बिल्कुल, बंदा तैयार खड़ा है। हुरिया कह के वार्डरोब की जाने बढ़ गई। तुम बहुत चेंज हो गई हो हनी। हुरिया ने चौंकते हुए देखा। क्यों मैं क्यों चेंज हो गई हूँ? पहले जब मैं तुम्हारी बात मानता था तो तुम मेरे गले लग जाती थी, अब नहीं लगती। हुरिया ने शाहजेब की बात पर गौर से देखा। पहले तो वो समझी नहीं, लेकिन जब समझ आया तो शर्म से चेहरा झुका लिया। ओए होए, यहाँ तो कौसे किज़ा के रंग फैल गए। शाहजेब ने इसको छेड़ा तो वो वॉशरूम की तरफ भाग गई। पागल है बिल्कुल, शाहजेब ने हंसते हुए सोचा और इसका इंतजार करने लगा। शाह गाड़ी रुके। शाहजेब ने हुरिया की यूं चिल्लाने पर ब्रेक लगाया। क्या हुआ? वो देखिए, गोलगप्पे वाला मुझे ये खाने। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, मैं तो डर ही गया था, पता नहीं क्या हो गया। किसी दिन तुम एक्सीडेंट करवाओगी। शाहजेब ने उसे घूर कर देखा। अच्छा ना चले हम। हुरिया ने इसकी डांट को सीरियस नहीं लिया। कोई ज़रूरत नहीं है, गला ख़राब हो जाएगा। वैसे भी तुमने आइसक्रीम का कहा था। शाहजेब ने सफ़ा चट अंदाज में इनकार कर दिया। चले ना शाह प्लीज़। देखें, आप नहीं खिलाएंगे तो कौन खिलाएगा? आखिर आप मेरे हस्बैंड हैं। हुरिया ने एकदम अपनी ज़ुबान दांतों में दबा ली। वो जो फुर्सत से बाहर देख रहा था, हुरिया की बात पर करंट खाकर उसे देखा। क्या कहा तुमने?
ज़रा दोबारा बोलना। हुरिया ने बिना सोचे समझे बोल दिया था। वो मैं कह रही हूँ गोलगप्पे खाने हैं, चले? नहीं, इसके बाद जो बोला था वो बताओ। क्या है शाह, चले ना? ठीक है ना, बताओ, मैं भी रात तक यही रहूँगा। और वो तो मैं जब ही खिलाऊंगा जब तुम मुझे बताओगी। शाहजेब उसे तंग करने में लगा हुआ था। कब से इसके कान तरस गए थे ये सुनने के लिए। हुरिया ने तो कहना ही छोड़ दिया था। तुम खा क्यों नहीं रही हो? अरीशा कुछ सोच रही थी। तैमूर ने उसके रुके हुए हाथों को देखकर कहा, जी जी मैं खा रही हूँ। क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? तैमूर ने इसकी बेख्याली को परेशानी समझा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरीशा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कैसे कहे। देखो, अगर कोई भी मसला है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। अरीशा ने सोचा, कह ही दूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। वो ना, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अरीशा ने डरते डरते पूछा। हाँ तो पढ़ लो, इसमें पूछने की क्या बात है? अरीशा ने हैरानगी से इसे देखा। इसे इतनी जल्दी तैमूर से हाँ की उम्मीद नहीं थी। तैमूर इसके चेहरे के उतार चढ़ाव को समझ रहा था। अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हें आगे पढ़ने से मना कर दूंगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अपनी शरीक हयात को अपने बराबर देखना चाहता हूँ। मैं उन मर्दों में से नहीं जो बीवी के जायज़ बातों को ना माने। तुम पढ़ो जितना पढ़ना चाहती हो। रही बात अंकल से इजाज़त लेने की, तो मैं खुद बात कर लूँगा। अब तुम खाना खाओ। तैमूर ने इसके हाथ की पुश्त को थपक कर कहा। अरीशा के तो गुमान में भी नहीं था तैमूर इतनी पॉजिटिव सोच का मालिक है। इसकी आंखें शुक्र से भर गईं। तैमूर को देखने लगी जो अब खाना खाना शुरू कर चुका था। शाह क्यों जिद कर रहे हैं? चले ना, वो चला जाएगा। अब के शाहजेब ने संजीदगी इख्तियार कर ली। वो भी ठान के बैठा था कि बुलवा कर रहेगा। जिद ही समझ लो, तुम पर है। अब ये कि तुम बोलोगी या नहीं। हुरिया को बोलना ही था, वरना वो गोलगप्पे से हाथ धो बैठती। अच्छा शाह, खिला दे, देखे मैं आपकी बीवी हूं ना। हुरिया ने आहिस्ता आवाज में कहा, लेकिन शाहजेब ने सुन लिया था। ये हुई ना बात। अब तुम यहाँ बैठो, मैं लेकर आता हूँ। शाहजेब इसके लिए एक प्लेट गोलगप्पों की लेकर आया था। हुरिया ने इसके हाथ में एक ही प्लेट देखी। शाह, आपकी प्लेट कहाँ है? आप नहीं खाएंगे? नहीं, तुम ही खाओ, मैंने अपना गला नहीं खराब करवाना। शाह, मुझे आगे पढ़ना है। हुरिया ने कहा तो शाहजेब ने इसे ऐसे देखा जैसे हुरिया ने कोई अनोखी बात कह दी हो। क्या ये तुम कह रही हो? तुम हुरिया ही हो ना? शाहजेब को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। हुरिया और पढ़ने की बात करे? क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप इतने हैरान हो रहे हैं? हैरान नहीं हूँ तो और क्या करूँ? तुम पढ़ाई से इतना दूर भागती थी और अब खुद ही आगे पढ़ने का कह रही हो। आप मेरा मजाक बना रहे हैं, हुरिया ने खफा से अंदाज में कहा। नहीं, मैं मजाक तो नहीं उड़ा रहा, शाहजेब ने संभल कर कहा कि कहीं वो नाराज ही ना हो जाए। अच्छी बात है, पढ़ लो, मैं कल ही तुम्हारा एडमिशन फॉर्म ले आऊँगा। थैंक यू शाह, हुरिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अरीशा और हुरिया ने एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। इनको जाते हुए 5 महीने हो भी गए थे। दिन यूं ही अपनी रफ्तार से गुजर रहे थे। यूं जाने कैसे 1 साल बीत गया। हनी जल्दी करो, कितना टाइम लगाती हो? तैमूर की कॉल्स। शाहजेब ने हुरिया को ब्लैक साड़ी में देखा तो देखता ही रह गया। हुरिया ब्लैक साड़ी में आईने के सामने खड़ी नेकलेस पहन रही थी और बाल सारे आगे की जानिब ढलके हुए थे। साफ रंगत पर ब्लैक साड़ी इसके हुस्न को दो आतिशा कर रही थी। शाहजेब खोए हुए से अंदाज में आगे बढ़ा और हुरिया के पीछे आकर इसके नेकलेस के हुक को बंद किया। हुरिया इसको अपने इतने करीब देखकर घबरा गई, लेकिन फिर संभल भी गई। उफ शाह, आपने तो डरा ही दिया। किस पर बिजलियां गिराने का इरादा है? शाहजेब ने उसे शरीर से अंदाज में देखा। आप पर। हुरिया खिलखिलाते हुए साइड से निकल गई और बेड की जानिब बढ़ गई, जहां 6 महीने की हानिया लेटे हुए अपने हाथ पांव से खेल रही थी। हानिया को शाहजेब ने पहली दफा जब गोद में लिया तो इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। पूरी की पूरी हुरिया की कॉपी थी। इसे ऐसे लगा जैसे वक्त पीछे चला गया हो। हुरिया की पैदाइश के वक्त इतने हादसे हुए कि शाहजेब तो उसे देख ही नहीं सका था, लेकिन जब वो
तहमीना बेगम के पास आया तो इनके हाथों में रुई के गालों जैसी बच्ची को देखकर, आनी ये तो गुड़िया है, क्या मैं इसे गोद में ले लूं? शाहजेब ने डरते हुए पूछा था, क्योंकि वो अभी दिनों की ही थी। हाँ क्यों नहीं, शाहजेब ने उसे बहुत आराम से अपने हाथों में उठाया था, नाजुक गुड़िया की तरह, और नाम भी खुद ही रखा था। उसे लगा कि अभी आनी आकर कहेंगी, शाह ये तो पूरी हुरिया है। किन किन यादों ने इसकी आंखों में आंसू भरे थे। आज तैमूर और अरीशा की बारात थी। हुरिया ने ब्लैक साड़ी और शाहजेब ने ब्लैक ही पेंट कोट पहना हुआ था। अरीशा को स्टेज पर लाया गया। अरीशा ने मैरून कलर का शरारा और तैमूर ने वाइट कलर की शेरवानी पहनी थी। दोनों की जोड़ी खूब जच रही थी। फोटो सेशन का सिलसिला रुका तो रुखसती के वक्त हुरिया की आंखों में भी आंसू थे, जो शाहजेब ने देख लिए थे। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी तो हो चुकी रुखसती, क्या दोबारा करवाने का इरादा है? शाहजेब की बात पर हुरिया को हंसी आ गई और शाहजेब भी मुतमईन हो गया। इसका मतलब बस हुरिया का ध्यान बटाना होता था और हुरिया पुरसुकून हो गई थी कि इसका हमसफर इसकी जिंदगी की छाँव है। अरीशा, मैं चाहता हूँ आज सारी बातें क्लियर कर दूँ ताकि आने वाली ज़िंदगी में कोई बदगुमानियाँ ना हो। मैं एक खरा बंदा हूँ, मेरी ज़िंदगी साफ सुथरी गुजरी है। मैंने जब तुम्हें पहली दफ़ा देखा था तो तुम मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने तुम से राहो रस्म बढ़ाने की बजाय डायरेक्ट तुम्हारे पेरेंट्स से निकाह की बात की। उन्हें मनाना एक मुश्किल काम था, ये मैं फिर कभी बताऊंगा। बहरहाल वो मान गए। मैं चाहता तो वो सिर्फ मंगनी ही करवा लेता, लेकिन हमारे मज़हब में मंगनी की कोई अहमियत ही नहीं, इसीलिए डायरेक्ट निकाह किया। कल को अगर तुमसे कोई बात करूं तो तुम कोई गैर समझकर बात ना करो, बल्कि एक जायज़ और पाक रिश्ते का तहफ़्फ़ुज़ तुम्हारे जहन में हो। अब अगर तुम्हें कोई शिकायत हो तो बताओ। तैमूर ने अपनी बात क्लियर करके इससे पूछा। अरीशा की आंखें नम हो गई थी। इतना चाहे जाने पर यह भी तो मोहब्बत ही है कि आप अपने शरीके हयात को इज्जत दें और उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दें। तो यहाँ पर ख़त्म होती है ज़िंदगी धूप तुम खाना साया। आपको अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। कमेंट्स में प्लीज़ बताइए आप किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। बाय बाय।